قسط نمبر 27 کا آغاز شرجینا اور مصطفیٰ سے ہوتا ہے جو رات میں بالکونی میں موجود ہے۔ شرجینا کنفیوژ ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مصطفیٰ کو اپنی پریگننسی کی خبر کیسے سنائے۔ مصطفیٰ ایک نظر شرجینا کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، جس پر شرجینا کہتی ہے کہ وہ آج ہاسپٹل گئی تھی۔ مصطفیٰ پریشان ہے کر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے، اس پر شرجینا اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، جس پر مصطفیٰ شاکر رہ جاتا ہے، چہرے پر سنجیدگی ہے جبکہ شرجینا خوش ہے، کہتی ہے کہ وہ لوگ والدین بننے والے ہیں۔ مصطفیٰ کو دیکھتی ہے جس کے چہرے پر سنجیدگی ہے، اسے دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا وہ خوش نہیں ہے، جس پر مصطفیٰ بہانہ بنا کر وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ شرجینا کنفیوژ نظروں سے مصطفیٰ کو جاتا ہوا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہاں مرتضیٰ بیوی سے کہتا ہے کہ اسے افتخار پر بہت غصہ ہے، اس نے شرجینا کی شادی کے وقت اس سے کتنے دعوے کیے تھے کہ وہ اس کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ بیوی کہتی ہے کہ بہوؤں کے ساتھ تو لوگ اکثر ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ تو ان کا اپنا خون ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے، جس پر شوہر اس کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی افتخار سے بہت پرانی دوستی ہے، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پایا، وہ بھی اپنے گھر والوں کی طرح مطلبی انسان ہے، کس طرح وہ اپنی پیسے والی بہو کے چونچلے اٹھا رہا ہے اور اس نے اس کی ہی غلامی میں مصطفیٰ اور شرجینا کو گھر سے نکالا ہے، جس پر بیوی کہتی ہے کہ بھول جائے یہ باتیں، اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، اور نماز کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جاتی ہے۔ مصطفیٰ بیڈ پر آ کر لیٹتا ہے تو شرجینا پوچھتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو رہا، وہ لوگ کنگلے ہو چکے ہیں، بچے کی ذمہ داری کیسے سنبھالیں گے، جس پر شرجینا کہتی ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اللہ ہر رزق اس کے ساتھ زمین پر بھیجتا ہے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ تو تنگی میں زندگی گزار لیں گے لیکن بچے کو کیسے ایسے حالات میں رکھیں گے، جس پر شرجینا اسے دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا وہ خوش نہیں ہے، جس پر مصطفیٰ خاموش رہ جاتا ہے۔ شرجینا اداسی سے کہتی ہے کہ وہ بہت الفاقساٹڈ تھی، اسے لگا کہ وہ بھی خوش ہوگا، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہ بس اپنی رائے دے رہا ہے، اگر وہ خوش ہے تو وہ بھی خوش ہے۔ یہاں شرجینا کہتی ہے کہ وہ ان حالات میں بھی بہت خوش ہے اور اسے بچے بہت پسند ہیں، کوئی تو ہوگا جو اسے ماما بولے گا، جس پر مصطفیٰ ایک لمحہ اسے دیکھتا ہے، شرجینا اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ دوسری جانب افتخار گھر پر آداس بیٹھے ہیں، انہیں مصطفیٰ کی یاد آتی ہے کہ وہ ان کی کیسے خدمت کرتا تھا اور وہ اسے ڈانٹتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ وہ چلا جائے گا تو وہ اسے یاد کریں گے۔ یہاں مصطفیٰ سو کر الفاٹتا ہے، شرجینا آتی ہے تو کہتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے، وہ اسے چھوڑتا ہوا آفس جائے گا، جس پر شرجینا پوچھتی ہے کہ وہ آج سے ہی جوائن کر رہا ہے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ ہاں، جس پر شرجینا کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے ناشتہ بناتی ہے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، وہ بس تیار ہو جائے، اور یہ کہہ کر وہ واش روم چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب شگفتہ افتخار کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ناشتہ لگا رہی ہیں، آ جائیں۔ ایک نظر انہیں دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے، جس پر افتخار کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہاں شگفتہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر نے جو ان کے لیے ملٹی وٹامنس لکھے تھے وہ عدیل دبئی سے منگوا رہا ہے، عدیل بہت اچھا بیٹا ہے، ان کا دل کھول کر اپنے ماں باپ پر پیسہ خرچ کرتا ہے، جس پر افتخار کوئی جواب نہیں دیتے۔ شگفتہ ناشتہ لگانے کے لیے گھر کے اندر جاتی ہے، افتخار بیٹھے رہ جاتے ہیں، دل میں خدا سے کہتے ہیں کہ زندگی بھر حلال روزی کما کر کیا غلط کیا تھا انہوں نے، جو آج اپنا گھر اور علاج کے لیے اولاد کا محتاج ہونا پڑ رہے ہے انہیں۔ یہاں وہ یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا محتاج نہ بنائے، جہاں باپ کو اولاد کا موت دیکھ کر بات کرنا پڑے۔ یہاں مصطفیٰ آفس کے لیے تیار ہو چکا ہے، شرجینا تیار ہو رہی ہے، مصطفیٰ آتا ہے اور شرجینا سے پوچھتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر کے بارے میں کچھ اسے بتایا ہی نہیں، جس پر شرجینا کہتی ہے کہ اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ری ایکٹ کرے، ویسے سب ٹھیک تو ہے نا، جس پر شرجینا مسکرا کر کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، بس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کرانے کا کہا ہے وہ کرانے ہیں، اور اس طرح وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر سے آفس کے لیے نکلتے ہیں۔ دوسری جانب مصطفیٰ نئے آفس میں موجود ہیں، باس آتے ہیں، مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اسے کام سمجھ آ گیا، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ جی، جس پر وہ اسے تنبیہ کرتے ہیں کہ آج وہ 10 منٹ لیٹ آیا ہے اور 3 دن مسلسل لیٹ آنے پر وہ 1 دن کی چھٹی لگا دیتے ہیں، اس لیے وہ آئندہ خیال رکھے، جس پر مصطفیٰ جی کہتا ہے اور باس آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دوسرا آدمی بڑبڑاتا ہے کہ لیٹ آنے پر تو تنخواہ کٹتی ہے لیکن لیٹ جانے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ اسے آج کوئی نئی جگہ کام مل جائے تو وہ یہ نوکری چھوڑ دے، جس پر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ملک کے حالات دیکھے کہیں جاب نہیں ملتی۔ یہاں پہلا آدمی کہتا ہے کہ 1-2 سال کا بیٹا ہے، بیوی کے الگ خرچے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ یہ ساری باتیں سن رہا ہے، چہرے پر سوچ ہے۔ یہاں عدیل آفس کے کچھ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے نکلتا ہے، کوریڈور سے گزرتے اسے سیڑھیوں پر ایک لڑکی نظر آتی ہے، وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، جس پر امپلائی بتاتا ہے کہ اس لڑکی کو ابھی نیا جاب پر رکھا گیا ہے۔ عدیل ایک نظر اسے جاتا دیکھتا ہے، پھر وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب مصطفیٰ ڈائننگ ٹیبل پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹیبل پر کئی کھانے رکھے ہیں، حیران ہے کر شرجینا سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آ گیا، اور کہہ کر پلیٹ میں کچھ نکالنے لگتا ہے۔ اتنے میں شرجینا چیئر پر بیٹھتے ہوئے خوشی خوشی
बताती है कि ये सब उसके घर से आया है और उसकी उम्मी ने भिजवाया है, जिस पर मुस्तफा का हाथ राग जाता है। शर्जीना पूछती है कि क्या हुआ, तो मुस्तफा कहता है कि इसे इसके माँ बाप की ये खैरात नहीं खानी। यहाँ शर्जीना कहती है कि माँ की मोहब्बत खैरात नहीं होती, जिस पर मुस्तफा कहता है कि इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि इसके माँ बाप इसे ये बावर कराना चाहते हैं कि वो ये खाने अफोर्ड नहीं कर सकता। शर्जीना नाराज है कर कहती है कि ये कैसी सोच है तुम्हारी, इसकी माँ ने इसके लिए भेजा है, वो क्या इसे वापस भिजवा देती, जिस पर मुस्तफा कहता है वो खाए, और ये कहकर वो अलिफाटे कर वहाँ से चला जाता है। शर्जीना परेशान बैठी रह जाती है। यहाँ अदील ऑफिस से निकलने लगता है कि तो देखता है कि वो नई लड़की अभी तक बैठी काम कर रही है। इससे पूछता है कि वो अभी तक यहीं क्यों बैठी है, जिस पर लड़की जरा कंफ्यूज है कर उठकर इसे अपना तारुफ कराती है कि इसका नाम मारुख खालिद है और वो अभी अभी HR डिपार्टमेंट में हायर हुई है। अदील मुस्कुराकर कहता है कि और आते साथ ही HR वालों ने इसे इतना काम दे दिया, जिस पर लड़की मुस्कुराकर कहती है कि वो अपना काम मुकम्मल करके उठना चाहती थी इसलिए बैठी हुई थी, जिस पर अदील बड़ी अपनायत से इसे कहता है कि वो इसे इतनी देर तक ऑफिस में बैठे नहीं रहने देना चाहता, वो अब छठी करे, जिस पर लड़की जल्दी जल्दी अपना लैपटॉप बंद करने लगती है। तो अदील पूछता है कि ये इसकी पहली जॉब है, जिस पर लड़की बताती है कि जी, जिस पर अदील इसे गहरी नजरों से देखते हुए कहता है कि इसकी घबराहट से लग रहा है कि ये इसकी पहली जॉब है। इसके बाद वो लड़की जाती है। अदील एक लम्हा खड़ा कुछ रहता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ शर्जीना बेड पर लेटी हुई है कि मुस्तफा आता है और पूछता है कि इसने खाना क्यों नहीं खाया, जिस पर शर्जीना संजीदगी से कहती है कि इसका दिल नहीं चाह रहा और वो सोने दे इसे। यहाँ मुस्तफा कहता है कि वो इसे भूखा नहीं सोने देगा और वो इसके लिए खाना लेने जा रहा है, जिस पर शर्जीना कहती है कि इसका दिल नहीं चाह रहा, जिस पर मुस्तफा करीब आकर कहता है कि इसने गुस्से में बोल दिया तो क्या हुआ, भूल जाए, जिस पर शर्जीना कहती है कि इसे क्या हो गया है, वो पहले खिलकर हंसता था, बात करता था, अब वो इतना नेगेटिव क्यों हो गया है। शर्जीना कहती है कि वो जानती है कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तल्ख हो जाए, इसने पैसे को क्यों इतना सर पर सवार कर लिया है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार की बातें हैं, प्यार से पेट नहीं भरता, और ये कहकर वो खाना लेने जाता। शर्जीना खामोश बैठी रह जाती है। दूसरी जानिब ऑफिस में अदील का साबिका दोस्त और मौजूदा रुबाब के वालिद का मुखबिर एम्प्लाई इस नई लड़की मारुख से फोन पर बात कर रहा है और कहता है कि वो अच्छा काम कर रही है, अदील इसे सिर्फ लिफ्ट तक लेकर गया है, कल वो खुद इसे काफी की ऑफर करेगा और उसके बाद वो इसे घर तक ड्रॉप करेगा, जिस पर मारुख कहती है कि इसे भी ऐसा ही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। एम्प्लाई मारुख से कहता है कि बस इसे ये मासूमाना एक्टिंग जारी रखनी है और कहकर फोन बंद करता है और बड़बड़ाता है, अदील तुम तो गए। यहाँ वो खुद कलामी करता है कि वो मंसूर साहिब को फोन करके उन्हें बताएगा कि उनका दामाद, जिसे वो सख्त नापसंद करते हैं, इसके खिलाफ उसके पास बहुत तगड़ा सबूत हाथ आने वाला है। वाकई मर्द की फितरत है कि ज्यादा पैसा आ जाए तो वो अपनी औकात भूल जाता है, अय्याशियों में पड़ जाता है और यही कमजोरी मर्द को डुबो देती है, और अदील भी ऐसे ही डूबेगा। यहाँ मुस्तफा बैठा शर्जीना के जुमले याद कर रहा है, जिसमें वो इससे कहती है कि इसकी उम्मी कहती है कि हर रूह का रिस्क अल्लाह इसके साथ जमीन पर भेजता है। यहाँ इसे ऑफिस के कोलेक्स की बातें याद आती हैं, जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शादी और बीवी बच्चों के कितने खर्चे होते हैं। इतने में मसरूफ के मोबाइल पर कॉल आती है और एक आदमी मुस्तफा से फोन पर बात करते हुए पूछता है कि वो मुस्तफा बात कर रहा है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि जी अब कौन, जिस पर वो आदमी बताता है कि इसने इसका गेम देखा है और बहुत शानदार गेम बनाता है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि इसके पास उन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, जिस पर आदमी इससे माजरत करते हुए इसे बताता है कि इसका नाम दानिश सिद्दीकी है और वो अपनी एक नई गेमिंग कंपनी बनाने का इरादा रखता है और इसे वो जॉब ऑफर करना चाहता है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और कह फोन बंद कर देता है। शर्जीना आकर पूछती है कि कौन था, तो बताता है कि पता नहीं कौन था, कह रहा था कि गेमिंग कंपनी खोल रहा हूँ, जॉब देगा, जिस पर शर्जीना कहती है कि तुम उसकी पूरी बात तो सुन लेते, जिस पर मुस्तफा कहता है कि इसके पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि कल इसके टेस्ट हैं तो वो इसके साथ ही चलेगा, जिस पर शर्जीना कहती है कि वो खुद टेस्ट करा के ऑफिस चली जाएगी, वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, जिस पर मुस्तफा कहता है कि इसने ऑफिस वालों को बोल दिया था कि वो लेट आएगा, इसलिए वो साथ ही चलेगा। यहाँ शर्जीना हैरानी से कहती है कि इसे याद था उसके टेस्ट का, जिस पर मुस्तफा कहता है कि इससे रिलेटेड हर बात याद रहती है इसे। यहाँ शर्जीना इसे याद कराती है कि वो अगर ये कहता कि इसे और उसके बच्चे से रिलेटेड हर बात इसे याद रहती है तो इसे ज्यादा अच्छा लगता, जिस पर मुस्तफा खामोश रह जाता है और वहां से चला जाता है। अदील ऑफिस किसी एम्प्लाई के साथ बैठा है कि इतने में मारुख आती है और इससे काफी का पूछती है, जिस पर अदील मुस्कुराकर इससे कहता है कि जरूर, और मारुख मुस्कुराकर वहां से जाती है। अदील के चेहरे पर एक लम्हा मुस्कुराहट आती है और वो फिर अपने काम में मसरूफ हो जाता है। मारुख अपने रूम में आती है और फोन पर रुबाब के वालिद के खास एम्प्लाई से कहती है कि वजाहत साहिब अभी सर अदील के कमरे में बैठे हैं और वो लोग क्या बातें कर रहे हैं वो ये सुन नहीं पाई, और उसके बाद वो मजीद डिटेल इसे फोन पर बताने लगती है। शर्जीना किचन में काम कर रही है कि दरवाजा बजता है, आकर दरवाजा खोलती है तो सामने मुस्तफा है, अंदर आता है। शर्जीना कहती है कि वो इतनी देर से क्यों आया, जिस पर मुस्तफा बताता है कि जैसे ही छठी का टाइम होता है जावेद साहिब को कोई काम याद आ जाता है और वो फिर बिठा लेते हैं।
जिस पर शर्जीना कहती है कि इसके ऑफिस वाले बहुत फजूल लोग हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि अब जैसे भी हैं गुजारा करना है। शर्जीना से कहता है कि वो इसके लिए फ्रूट लाया है और वो इसे 2 दिन में खत्म करने हैं, जिस पर शर्जीना नखरे से कहती है कि वो क्या कोई जिन है जो ये सब 2 दिन में खत्म करेगी। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि डॉक्टर ने बताया है ना कि वो कमजोर है तो इसे अपना ख्याल रखना होगा। और यहाँ वो शर्जीना से ये भी कहता है कि वो संडे को उसके लिए और बहुत कुछ लेकर आएगा, जिसके बाद वो चेंज करने के लिए जाता है। दूसरी जानिब शर्जीना पौधों के पास बैठी है कि मुस्तफ़ा इसके लिए जूस बनाकर लाता है। शर्जीना हैरानी से इसे देखती है, कहती है कि जब इसे इसका इतना ही ख्याल है तो वो अपना मौत भी अच्छा कर ले। जिस पर मुस्तफ़ा एक लम्हा इसे देखता है, मुस्कुराता है। शर्जीना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है। शर्जीना मुस्तफ़ा से पूछती है कि आजकल वो इतना खामोश क्यों है, जिंदगी से बेजार उखड़ा उखड़ा वो अपने दिमाग में कुछ पक्का रहा है। मुस्तफ़ा कहता है कि वो ठीक है, जिस पर शर्जीना कहती है कि इसे वो पुराना वाला मुस्तफ़ा चाहिए जो हंसता मुस्कुराता था, जिंदगी को कभी सीरियस नहीं लेता था। यहाँ शर्जीना इसे हौसला देती है कि अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, इसे कोई ना कोई चांस जरूर मिलेगा। जिस पर मुस्तफ़ा बात को टाल कर वहाँ से अलिफाटे जाता है। मारूख अपने बास को अदील के मुतालिक सारी तफसीलात बता रही है, कहती है अदील बहुत मोहतात इंसान है, वो हर चीज का बहुत ख्याल रखता है। जिस पर उसका बास कहता है कि इसने इसे इसके कसीदे पढ़ने के लिए जॉब पर नहीं रखा, इसे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये काम इस कंपनी के मालिक मंसूर साहिब का है, और अगर इसने अदील के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मंसूर साहिब को दे दिया तो वो सोच ले कि इसका कैरियर इस कंपनी में कहां तक जा सकता है। जिस पर मारूख के चेहरे पर सोच आती है और वो इसे कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है सबूत इकट्ठा करने की, लेकिन इसे मौका नहीं मिल रहा। जिस पर इसका बास कहता है कि वो इसे ऑफिस से कहीं बाहर ले जाए, वो जानता है कि अदील बहुत होशियार है और वो इसीलिए इसे इस ऑफिस में लेकर आया है। जिस पर लड़की इसे इत्मीनान दिलाती है कि वो बहुत जल्द अदील के खिलाफ इसे कोई पुख्ता सबूत देगी। जिसके बाद इसका बास वहां से अलिफाटे कर जाता है। मारूख लैपटॉप पर बिजी हो जाती है। दूसरी जानिब शर्जीना स्टूल पर खड़ी घर की डस्टिंग कर रही है कि मुस्तफ़ा आता है और कहता है कि इसे बच्चा पैदा करने का शौक है तो इसका ख्याल रखना भी सीख जाए, और इसे वहां से भगा देता है। यहाँ शर्जीना कहती है कि बच्चा पैदा करने का शौक सिर्फ इसे ही है, इसे नहीं है। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि यार मेरे लफ्ज़ मत पकड़ो। इतने में दानिश का फोन आता है। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि वो इस आदमी से तंग आ गया है और कहकर फोन अलिफाटे आता है और कहता है वो इससे मिलना चाहता है तो बताए कहाँ मिलना है। यहाँ मुस्तफ़ा दानिश के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठा है। दानिश इसके गेम की तारीफ करता है, जिस पर मुस्तफ़ा बेजार हैकर कहता है कि इसने इसे जिस काम के लिए बुलाया है वो बात करे। यहाँ वो दानिश के सामने भारी शर्त रखता है कि वो माहाना 2 लाख और प्रॉफिट में 50% शेयर लेगा, जिस पर दानिश खामोश रह जाता है। मुस्तफ़ा कहता है कि इसके पास वक्त है, वो सोच ले, अगर समझ आए तो इसे कॉल कर ले, और ये कहकर वो वहां से अलिफाटे कर चला जाता है। वो आदमी बैठा रह जाता है। मुस्तफ़ा घर आता है तो शर्जीना पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि इसने ऐसी शर्तें रखी हैं दानिश के सामने कि वो फोन करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इतने में मुस्तफ़ा का फोन बजता है। मुस्तफ़ा नंबर देखता है और शर्जीना से कहता है कि दानिश फोन कर रहा है। कॉल पक करता है तो दूसरी जानिब से दानिश कहता है कि वो तो अपनी शर्त रख कर वहां से चला गया, इसका जवाब भी नहीं सुना इसने। और यहाँ वो ये भी बताता है कि इसे इसकी सारी शर्तें मंजूर हैं, जिस पर मुस्तफ़ा हैरान रह जाता है। दानिश कहता है कि वो कल ऑफिस में आकर इससे मिल ले, और कहकर फोन बंद करता है। जिसके बाद शर्जीना पूछती है कि क्या हुआ, तो मुस्तफ़ा कहता है कि अजीब पागल इंसान है, इसने इसकी सारी बातें मान ली और इसे ये कोई फ्रॉड लग रहा है। शर्जीना पूछती है कि वो अब क्या करेगा, जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि मिलकर पता चलेगा कि वो बंदा कैसा है। मुस्तफ़ा ऑफिस के बाहर खड़ा दानिश का इंतजार कर रहा है कि इतने में दानिश की गाड़ी आती है और इसमें से दानिश आतर कर आता है। हाथ मिलाकर दोनों ऑफिस की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ वो बताता है कि इसने अभी सिर्फ मुस्तफ़ा से राब्ता किया है और वो चाहता है कि इसकी अपनी एक टीम हो, और अगर उनका काम चल पड़ा तो वो दूसरा ऑफिस भी किराए पर ले लेंगे। दोनों लिफ्ट में इंटर होते हैं। दूसरी जानिब मारूख अदील के कमरे में आकर उसकी चीजें सीट करने लगती है। अदील वॉशरूम से आता है तो मारूख इससे काफी का पूछती है, जिस पर अदील मुस्कुराकर कहता है कि इसे कैसे पता चला कि इसका काफी पीने का मौड है। जिस पर मारूख कहती है कि वो इतनी लंबी मीटिंग में था तो इसे लगा कि इसे काफी चाहिए होगी। यहाँ अदील कहता है कि काफी तो वो पाएगा, लेकिन इसे इसके साथ बैठकर कुछ खाना भी होगा। जिस पर मारूख बताती है कि इसने लंच भी नहीं किया तो खा लेगी। अदील चौंकता है और कहता है कि इसने इसकी मीटिंग की खातिर अपना लंच मिस किया है तो वो इसे अब लंच कराएगा। जिस पर मारूख हैरानी से कहती है कि क्या वाकई, जिस पर अदील यस कहकर इसे साथ लेकर ऑफिस से निकलता है। यहाँ दानिश मुस्तफ़ा के सामने कॉन्ट्रैक्ट लाकर रखता है और इसे बताता है कि इसकी सारी शर्तें इसमें लिख दी गई हैं और वो आराम से इसे पढ़ ले। जिस पर मुस्तफ़ा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगता है और दानिश इसके लिए चाय बनाने लगता है और अपने बारे में भी इसे बताता है कि वो कौन है और पहले क्या करता रहा था। यहाँ वो ये भी इंकिशाफ करता है
کہ اسے امریکہ میں پتہ چلا کہ وہ جو گیم اس نے بنایا تھا وہ دراصل جوزف کا نہیں بلکہ اس کا گیم تھا، اور وہ اس وقت سے اس کی تلاش میں تھا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسے جوزف کی طرح دھوکہ نہیں دے گا۔ یہاں قسط نمبر 27 کا اختتام ہوگا ہے۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔